Hi everyone, I'm here. My name is Aparna Sharma, and I'm here with a very special guest with me, and who's known for his filmmaking and film craft. And his name is Shnesis Das. He's from Odisha film industry, and he is well known in the film fraternity. And today we are going to discuss about the film industry in general, but more specifically about Odisha film industry. I really wanted to know, Snehasis ji, before going ahead, I really wanted to welcome you and thanks for accepting this, wonderful discussion. I really hope so that we are going to bring a lot of issues pertaining to this, the whole scenario that in particular for the last 1.5 2 years that everyone are going through, and I want to put some light on specific things on how people are suffering, people as in the industry is suffering. Industry is a very we know that industry is a very close knit family. We know the industry people are dependent on physically going out and working. What are the constraints that we have in the industry? And the large families are dependent on one particular person, especially when we talk about the film industry, most, a lot of people, I now believe a lot of people do understand and do know, but lot of people, there are, an understanding is lacking that the small, what do you call it as specifically काम करने वाले हैं, when I call Right, it as a technicians, or right, probably people from a very lower category of the sport boys, and they are totally depend on it. So one family, there are from 5 to 6 of them, and there is a sport boy or some technicians or some musicians, and probably a choreographers or who are assisting. They're all dependent on this. For the last 2 years, how this industry is functioning and how are they majorly taking care of their families, because we wanted to go ahead in every particular industry, because when we talk about mental health, when we talk about after COVID effects or during COVID effects, from a wide spectrum, हम सभी प्रॉब्लम और सभी को एक ही जैसे समझते हैं, एक ही जैसे समझना, आई थिंक इट इज फाइन, right. बट मेजरली मुझे ऐसा लगता है कि जी, उसको जब तक हम अलग कैटेगराइज नहीं करते हैं, आई थिंक वी डोंट अंडरस्टैंड इट प्रॉब्ली, so that is the reason why right. this specific interaction with you, that I really wanted to understand, because the film industry is just not Bollywood. I think there are various Right. film fraternities, various blocks of fraternity which contribute large to the Indian context. So I wanted to bring out that and share to people it's just not Bollywood. There are many other people who are dependent on industries and their working scenarios. आप मुझे थोड़ा सा आइडिया बताएंगे पहले कि हम शुरुआत करें कि इंडस्ट्री में किस तरह के लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं और कितना ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन है, नंबर वन। दूसरा, क्या ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री में अगर काम नहीं मिलने के कारण क्या बहुत ज्यादा माइग्रेशन है टुवर्ड्स बॉलीवुड, ये भी मैंने जानना चाहूंगी। और वो अगर माइग्रेशन है, इज इट बिकॉज ऑफ कोविड, is it because of the after effects, or is it because of there is too much of a poverty which is or grief stricken which is driving them away from the industry? ये क्या reasons हो सकते Uh, Thank you. Actually, it's a long, but before answering your question, I just wanted to introduce you as well. Most people doesn't know about हैं? you. Is actually Okay. Parna ji, one of the eminent psychotherapist in India, and it's an honor for me to share this discussion with her. And says, and Thank you. I'm going to listen to her today. Basically, I'm not going to answer a lot of questions. I'm to listen. I'm going to take some, valuable tips from Aparnaji today. Yes, coming to your question, like Odisha film industry is a very small industry actually. बहुत छोटा सा है.
बट इसका अगर हिस्ट्री देखा जाए बहुत पुरानी है. इट्स ओल्डेस्ट फिल्म इंडस्ट्री बट इट्स अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री. दो तरह की आंसर्स यहाँ पे हो सकते हैं आपके बेसिकली. जो माइग्रेशन की आपने, अगर टोटल मैं बताऊं आपके कितने लोग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, मुझे लगता है लगभग 30 से 40 हजार लोग इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते होंगे. बट ऑन एंड ऑफ, क्योंकि बिकॉज दिस इज ए स्मॉल इंडस्ट्री, यहाँ पे बजट्स इतने नहीं होते फिल्म बनाने के लिए. एट द सेम टाइम I have mentioned this oldest industry. पहले लोग यहाँ पे पैशनेटली फिल्म बनाते थे, पहले अच्छे फिल्म बनते थे यहाँ पे. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ था जिस प्लेटफॉर्म में हम लोग आके अभी काम कर रहे हैं. अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं करता है फिल्म इंडस्ट्री. अगर माइग्रेशन की बात करें, बॉलीवुड में इफ यू गो, मोस्ट ऑफ द टेक्नीशियंस आर ओडिया. Most prominent technicians are Odia. If you talk about sound designers, sound engineers, editors, camera persons, every other day people from Odisha, they go to Mumbai for work. That's just because this industry has no money. एक परिवार को चलाना डिफिकल्ट हो जाता है. अगर if you are a star actor, if you are a producer, वो बात अलग होती है. लेकिन when you talk about a स्पॉट बॉय और स्मॉल असिस्टेंट और टेक्नीशियंस, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. मेरे लास्ट प्रोजेक्ट जब फिल्म कर रहा था, एक स्पॉट बॉय था, उसका नाम विद्या था. तो बीच में 1-2 दिन के बाद थोड़ा सा मेरे साथ जो वो मतलब क्लोजनेस उसका हो गया, क्योंकि बीच बीच में वो नींबू पानी देता था, चाय देता था. देन अचानक उसने अपना वो स्मार्टफोन निकाल के मुझे वो कुछ दिखाने लगा. हाँ, मैंने क्या है विद्या, ये क्या है? नहीं, एक्चुअली मैं एक वीवर हूँ, मैं हैंडलूम साड़ी बनाता हूँ, मैं वीवर फैमिली से बिलोंग. हाँ, यस, आई एम बिलोंग टू वीवर फैमिली. बट वो इंडस्ट्री भी अभी ऐसा नहीं रहा कि मतलब वहाँ उसी से हम गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि वो हैंडलूम था. हैंडलूम इट्स नाउ स्लोली एंड स्टडीली डिमिनिशिंग. एट द सेम टाइम मैं अच्छी चाय बना लेता हूँ, इसलिए कि मेरा एक चाय की दुकान भी है. तो हाँ, वो मतलब उसके गांव में या नियर बाय गांव में कभी मेला वाला लगता है, तो वहां पे जाकर वो चाय भी बेचता है, अपने गांव में भी चाय बेचता है. बट फिल्म इंडस्ट्री में इसलिए आया हूँ कि मैं पैशनेट हूँ एक्टिंग के लिए, और मुझे काम करना इसमें अच्छा लगता है. और मुझे लगा कि मैं सिर्फ ये करके, स्पॉट बॉय का काम करके, कभी कभी अगर मुझे इस कोशिश में हूँ कि मुझे कहीं भी कभी भी थोड़ा एक्टिंग का मौका मिल जाएगा, तो इससे मेरा गुजारा नहीं हो सकता है. इसीलिए मेरा चाय की दुकान भी है, और मैं कभी घर वालों के साथ मिलके हैंडलूम्स का काम भी करता हूँ, वीविंग भी करता हूँ. तो आपको अगर फैमिली में साड़ी वाड़ी का जरूरत पड़ेगा, दिस इज माई लॉग, सो यू कैन ऑर्डर. सो मेरा ये कहने का राइट, तो मेरे ये कहने का मतलब था कि मतलब जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं वो पैशनेटली करते हैं. मनी तो नहीं है, आपको अगर सच बताऊं, मनी इज नॉट देयर, क्योंकि बहुत कम बजट्स में आजकल यहाँ पे फिल्म बनने लगा है. दैट इज जस्ट बिकॉज कि मैं कोविड का जो चीज है वो बाद में आता हूँ, उससे पहले इस अदर प्रॉब्लम्स बताते थे, सो दैट वो कोविड के साथ फिर कैसे हम रिलेट करेंगे उसको. जी. तो बीच में क्या हुआ, शुरुआत में ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल स्टोरीज, अच्छे स्टोरीज. मेरा यहाँ पे अभी थोड़ा लोगों के हिसाब से बहुत सारे कॉपीज फिल्म बन रहे, मोस्टली इन्फ्लुएंस फ्रॉम द साउथ इंडियन फिल्म्स. बट मेरा कहना क्या है कि कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है. अगर मैं एक अच्छी फिल्म को, अच्छी इन्फ्लुएंस एक फिल्म बना, तो इट्स नॉट बैड थिंग, क्योंकि अच्छी चीज में लोगों को दिखाना चाहता हूँ. बट कॉपी करके फेल होना एक बुरी चीज है. आप अगर उसको ऑनेस्टली एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को ठगना चाहते हैं, ठीक है ना. आप मतलब मेरा कहना क्या है कि डोंट पुट अक्रॉस द रॉन्ग मैसेजेस थ्रू योर फिल्म्स, पुट गुड मैसेजेस थ्रू अ फिल्म. लोगों को गुमराह मत करो. तो बीच में ऐसा कुछ हो गया कि लोगों के हिसाब से कि कॉपीड फिल्म बनने लगे जिसका कोई वजूद ही नहीं है, मतलब
ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। Okay. उड़ीसा का कल्चर उसमें नहीं है, रिलीजियन नहीं है, लाइफस्टाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, द मिसिंग। सो दैट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंडस्ट्री ग्रो करना बंद हो गया, बजट्स बंद हो गए, थिएटर्स लोग जाना बंद कर दिए, ठीक है। तो Okay. लोग हमें इसको लेकर बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, और अच्छा। बिकॉज इंडस्ट्री में पैसा नहीं है तो माइग्रेशन जो आप बता रहे थे, वो पुराने टाइम से लोग मुंबई चले जाते हैं वहां पे काम करने के लिए। बट अगर उनको आप पूछें तो एक उड़िया फिल्म करने के लिए उनके दिल में हमेशा एक वो रहता है, अभी कभी भी उनको बोलो वो तुरंत आके पहुंच जाते हैं। बट वही अच्छा। सवाल उनके दिमाग में है कि वी कैन नॉट लाइक रन आवर फैमिली हियर बाय वर्किंग, कि आप पैसे ज्यादा उतना कम कमा नहीं सकते। आप अगर मेरा भी एग्जाम्पल लेंगे तो मैं फिल्म बनाता हूँ, बट एट द सेम टाइम आई डू डॉक्यूमेंट्रीज, I do commission projects from government agencies, from UN agencies, from other agencies, funding agencies, so that I can, survive myself. Correct. I can feed my Correct. family. तो That's right. इसके साथ साथ क्या हुआ, बैडली जो जिस तरह हर साल उड़ीसा में एक साइक्लोन इफेक्ट करता है, तो उड़ीसा लोग पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल। इस बार जी। दिस कोविड हैज बैंग लाइक एनीथिंग। ये एक मतलब इस तरह का हुआ, मतलब कंप्लीटली काम पूरा ही बंद हो गया, इंडस्ट्रीज क्लोज्ड। बीच में Okay. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ, हाँ बीच में एक चीज हुआ, मैं बताना भूल गया, बीच में एक चीज हुआ उड़ीसा में, कुछ प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स आने लगे, अगर एंटरटेनमेंट की बात करें तो वो सीरियल्स वगैरह बनाने लगे। तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस मतलब इन्वॉल्व हो गए, तो वहां से एक इनकम का जरिया निकला, तो वहां वो चले गए। बट वही लोग फिल्म भी करते हैं, वही लोग करते हैं, तो एक टाइम में थोड़ा सा बैलेंस था। एंड और एक छोटा चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, स्टेज थिएटर तो है ही, बस स्टेज थिएटर से लोगों का इतना इनकम नहीं होता यहाँ पे और एक चीज है जिसको जात्रा कहते हैं। Jatra is huge here. Jatra is huge. It's an open theater, you can say. It's a modernized theater nowadays. Jatra का एक स्टाइल होता है, द डायलॉग डिलीवरी, द प्रेजेंटेशन, उसमें आपको पूरा टेक्निकली बारिश वगैरह करा के डांसेस, वो आपको एक लाइव फिल्म की तरह दिखाते हैं वहां पे। Yes, that is very interesting. वो पुराने जमाने से बहुत सालों से है, पर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी उसमें आ गया, क्योंकि पीछे एलसीडी लगा के कश्मीर दिखा के, कश्मीर में का गाना वो दिखा, वो बहुत सारा चीज, वो 2-3 स्टेजेस होता है, वो स्टेज पे वो परफॉर्म करते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी लाइवली, मतलब तो उस पे एक्चुअली वो जो भी पूजा वगैरह होता है यहाँ पे, हर कुछ डिस्ट्रिक्ट में उनका स्पेशल पूजा होता है, दे नॉर्मली ट्रैवल। इट्स ए ह्यूज यूनिट, ये एक बड़ा चीज है, मतलब इट्स ए ह्यूज यूनिट, मतलब उनका 10-15-20 ट्रक ट्रैवल करता है विद देयर इक्विपमेंट्स एंड ऑल। वो जहाँ पे सेटअप लगाते हैं, एक ग्राउंड देख के सेटअप लगाते हैं, और उनका जो एक्टर एक्ट्रेस है वो बाद में फिल्म एक्टर एक्ट्रेस से हाईएस्ट पेड हो गए। They paid very well. Yeah, they are very popular in rural pockets of Odisha. Rural क्या मतलब टाउनशिप, सिटीज में they are popular. Slowly, steadily, उनका जो टेंट लगाते हैं, उसको उन्होंने बॉक्स करके एसी भी कर दे, एसी प्रोवाइड किया, वो क्या, but they are very, they bring into luxury into the जात्रा पैटर्न। एंड जात्रा का स्पेशली उनका एक डायलॉग डिलीवरी है, वो डिफरेंट है। वो सिर्फ जत्रा, वो अगर कोई दूर से सुनेगा वो जत्रा चल रहा है वहां पे, वो नॉर्मल नहीं होता है। हाँ वो मेलोड्रामेटिक कैसे होता है? नहीं, मेरे से तो नहीं होगा, तो वो एक मेलोड्रामेटिक होता है। बेसिकली वो लाइव फिल्म दिखाना चाहते हैं लोगों को। नॉर्मली थिएटर में ही होता है, वो यहाँ पे डांस भी होता है, गाना भी होता है, विलन भी होता है ना, एवरीथिंग इज देयर। अगर बारिश का गाना है तो बारिश करवाते हैं, तो हाँ दे डू सिनेमा है। हाँ, इट्स अ लाइव सिनेमा यू कैन से। तो हीरो हीरोइन लाइव, तो उसमें क्या है ना, एक समय आया इसमें जो प्रोमिनेंट हम लोग को फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ये लोग भी जाने लगे, क्योंकि इंडस्ट्री में इतना उनको पेमेंट नहीं होता था, क्योंकि यात्रा इंडस्ट्री ज्यादा बहुत पेमेंट करता है, दे पेड वेरी वेल।
बट दैट इज अ Okay. पेनफुल थिंग, क्योंकि होल नाइट चलते पूरा, दे परफॉर्म होल नाइट, यू हैव टू बी आपको रात भर जग के परफॉर्म करना पड़ता है। वो फिर वो एक Okay. महीना भर तक उनका जो सीजन है, फेस्टिवल सीजन में बेसिकली चलता है वो महीने में आप एक साल में 6 महीना काम करो एंड यू अर्न अ लॉट। तो मैं इसका एग्जांपल इसीलिए दिया, यात्रा इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री एंड फिल्म इंडस्ट्री, तीनों चीज काइंड ऑफ शट डाउन बिकॉज ऑफ कोविड। नाउ आई एम कमिंग टू कोविड नाउ। कोविड का वजह Okay. से हाँ, गवर्नमेंट रूल्स have कम, क्योंकि अब इकट्ठे नहीं हो सकते, आप सारे लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते, तो सबका बुरा हाल है, सबका बुरा हाल है। मतलब नोबडी इज लाइक, मैं स्पॉट बॉय का एग्जांपल दिया, तो अभी वो चाय भी बेच नहीं पा रहा होगा वो, क्योंकि Of यू आर course. नॉट अलाउड टू Yes. ओपन योर शॉप। So Yes. this completely thought it's मतलब मेरे साथ भी वही हुआ है बेसिकली, like everything is closed। जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, that last time what was happened, last time basically लोगों ने सोचा कि 3 महीने में खत्म हो जाएगा, 4 महीने में खत्म हो जाएगा, बस ठीक है, 1 साल तक ठीक है, they managed, but बिल्कुल. second time when it comes, second wave, and now they're telling it's coming for the third time, तो वो तो मेंटल जी. हेल्थ को, डेफिनेटली मेंटल हेल्थ को बिगाड़ के रखता है, क्योंकि वो मैं खुद ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। लास्ट टाइम एक स्टोरी मैंने लिख लिया था, फिल्म लिख लिया था, जिसको मैंने शूट किया बीच में, जब हमको थोड़ा टाइम मिला, जब ओपन हो गया था, दैट टाइम डन दैट फिल्म, बट जी. दिस टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट। मेरे पास मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, रोज मुझे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, बट व्हेन आई एम सिटिंग टू राइट दैट, तो मुझे आई एम नॉट फीलिंग गुड टू राइट थिंग। अगर लिख भी लेता हूँ, फिर बाद में मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है सबकॉन्शियस माइंड में इट्स नॉट लाइक एक्सेप्टिंग योर, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप जो कंसीव करते हो, तो कॉन्शियस माइंड में लेके यू आर पुटिंग ऑन द पेपर, यू आर राइटिंग ऑन इट, बट वो चीज वो एक्सेप्टेंस ही नहीं हो रहा है। कोई लोग बोल रहे हैं योगा करो, ये करो, बट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योगा ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप अगर आई आंख बंद करके बैठते हो, वही आता है चीज आपके दिमाग में, क्योंकि करेक्ट. मेंटल जो हेल्थ है, लाइक आपके पास आऊंगा अभी, आप यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब दैट, जो मेंटल जो होता है, इफ आई एम रॉन्ग जस्ट लाइक टेल मी, इट्स दे आर रिलेटेड टू योर स्टोमक। अगर पेट में भूख है, योर इनकम इज नॉट देयर, आपको आगे क्या होगा आपको पता नहीं लग रहा है, तो देयर कम्स द मेंटल इलनेस, लाइक हाउ टू हैंडल इट एंड हाउ टू डू दैट। सो मुझे लगता है कि लाइक किसी का भी, आप अभी इस फेज में अगर जाके बीपी मेजर करेंगे, तो सबका थोड़ा बहुत तो ज्यादा होगा। तो एज फार एज फिल्म इंडस्ट्री इज कंसर्न, वो पूरा शट डाउन है। सीरियल्स बीच में वो लोग कर रहे थे, बट वो भी बंद है। तो मेरे जितने भी जान पहचान है, बट दे सेड क्लोज, वे सिटिंग एट होम, एंड क्या करें, मतलब दे आर आस्किंग गवर्नमेंट टू डू समथिंग, बट गवर्नमेंट हैजंट डन एनीथिंग फॉर दिस इंडस्ट्री टिल, लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक गवर्नमेंट जो भी उनका स्कीम्स प्रोग्राम्स होता है लोगों के लिए, बट फिल्म इंडस्ट्री के लिए आज ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एटलीस्ट जैसे आपने बताया, जूनियर टेक्नीशियन, स्पॉट बॉयज एंड ऑल, तो यहाँ पे यूनियन तो है, तो यूनियन से लिस्ट मिल जाएगा, थोड़ा भी डाइल्यूशन है, बट आई डोंट थिंक दे ऑल आर हैप्पी नाउ। कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ कॉल्स भी आते हैं, सर क्या कर रहे हो, याद रखना मुझे कभी भी अगर शुरू होता है काम तो। बट यहाँ के लोग क्या होता है ना, उड़ीसा के लोग, अपर्णा जी, बहुत स्वाभिमानी होते हैं। वो जी. पैसा नहीं होगा तो मांगेंगे भी नहीं आपको। जी. तो इट्स नॉट अफेक्टिंग ओनली इन उड़ीसा, इट्स अफेक्टिंग मुंबई ऑल्सो, बॉलीवुड ऑल्सो। जैसे उड़ीसा के लोग वहां पे भी हैं, मैं उनके साथ बातचीत होता रहता है, दे आर नॉट आस्किंग मनी, बट वो पता चल जाता है भाई क्या है नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। पूरा तो अभी तो बंद है, तो मुंबई तो ज्यादा एक्सपेंसिव है, घर लेके रहना वहां पे, वो करना। यहाँ पे एटलीस्ट जो है अपनी फैमिली के साथ है, तो दाल चावल से ही और सी कैन मैनेज। बट जो बाहर जाके रह रहे हैं, उसके लिए भी वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाता है। सो नाउ लाइक आई एम कमिंग टू यू, हाउ टू हैंडल दिस, क्योंकि
ये वैरी करता है, मेरे ख्याल से ये वैरी करता है द परसेंटेज ऑफ इलनेस, मेंटल इलनेस, डिपेंडिंग ऑन द पीपल टू पीपल। जैसे मैंने बताया, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है ही इज मैनेजिंग, बट एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो सफरिंग। कोई कोई लोगों के पास कुछ नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली जीरो। सो हाउ टू गो अबाउट इट? Yeah, it's a huge concern actually कि जिनके पास खाने के लिए नहीं हो और जिनकी टुमारो के लिए वो देख रहे हैं कि कल का कैसे गुजारा हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द प्रैक्टिकल पेन ऑफ अ पर्सन। he is not only mentally disturbed, he is physically also disturbed। मेरे ख्याल से हेल्थ वही है जहाँ हम पूरी तरह से सक्षम होते हैं। कंप्लीट हेल्थ इज योर बॉडी, माइंड एंड सोल। पैसा एक चीज है, मनी, योर सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और एक एक परिवार से हम सिक्योर होते हैं, वो तीन चीजें अलग अलग है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है उनका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है, ये भी नहीं कह सकते हैं। जिनके पास ये नहीं है उनका मेंटल हेल्थ, दोनों तरीके के लोग हैं। जब अभी के हम मद्देनजर रखते हैं दिस होल सिचुएशन एट द मोमेंट, बिकॉज ऑफ कोविड पीपल आर displaced from their place, displaced from their minds, and totally they are totally lost. They don't know where to begin, how to begin, where to go, how to seek। ये एक लोगों ने तो ये एक मैसेज दे दिया है। बहुत सारे मैंने सेमिनार्स अटेंड किए हैं, उस सेमिनार्स में भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट सब ने बोला कि वे फॉरवर्ड है, ये वे फॉरवर्ड है। बट उस वे फॉरवर्ड के अंदर एक कदम रखना, उसमें आगे बढ़ना, एक उसके अंदर आपके लिए बहुत स्किल्स की जरूरत है। क्योंकि अभी आप कहेंगे कि अभी ये सारे काम बंद हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे काम खत्म हो चुके हैं, नए काम शुरू, एक नई दुनिया बसाई है। समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं कि कोरोना नॉट जस्ट अफेक्टेड वन पर्टिकुलर एरिया और रीजन, कोरोना हैज अफेक्टेड द एंटायर वर्ल्ड। हम अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हर किसी का अपनी नई दुनिया बसाने का एक माध्यम, लेकिन नई दुनिया जो है वो कैसे बसाए, कैसे आगे बढ़े, वो स्टेप कहाँ रखें, हमें जमीन नहीं है फिलहाल। अगर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरे पैर के नीचे जमीन है तो मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन मेरे पैर के नीचे जमीन नहीं है, मैं अपने कदम कहाँ रखूंगी? तो ये एक बड़ी क्वेश्चन मार्क है, नंबर वन। ऐसे क्वेश्चन मार्क के टाइम में मुझे ये बहुत सुन के थोड़ा सा सैड फील हुआ है कि उड़ीसा की गवर्नमेंट काफी कुछ कर सकती है, और जो लोग बहुत लेवल पे जो चले जाते हैं टेक्नीशियंस वगैरह, वो ऑब्वियसली वो एक ही रीजन है ताकि वो थोड़ा सा बेटर कमाई कर सके, इसीलिए वो माइग्रेट होते हैं। फॉर एनीबडी, इंडस्ट्री, anybody who is going out of India or going out of one industry to another industry is because for going for extra miles, for extra money, that's all। तो वो अगर उनको वहां रहते हुए अगर इनको ये सारा जो है उनको मिल जाता है वहीं पर, आप बॉम्बे भी जाएंगे आपका खर्चा भी उतना ही दुगना होता है। बॉम्बे इज नॉट अ चीप प्लेस टू लिव इन, बॉम्बे इज एन एक्सपेंसिव प्लेस, बट पीपल आर स्टिल गोइंग, they are leaving their families behind, they're just going and struggling, eating outside, they are feeding their families also। ultimately उन सभी को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अल्टीमेटली डाउन द लाइन 10 years you're not saving anything for yourself। जैसे एक चींटी जो है वो सेव करती रहती है, वो इसीलिए सेव करती है कि वो बुरे वक्त पे काम आए, लेकिन बुरा वक्त हर दिन के लिए हम इतना मेहनत करते हैं और हम सेव नहीं कर पाते हैं। सो समथिंग लाइक कोविड टाइम्स पे वो पता लगता है कि हमारा सेविंग्स भी किसी काम नहीं आया। सो ऐसे में मैं आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट ये करेंगे हम कि उड़ीसा फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा और मजबूत बनाए, थोड़े से ताकत बनाए, ताकि जितने भी टेक्नीशियंस हैं आज बहुत कमजोर हैं या आज एक दूसरे को कॉल करते हैं, पूछताछ करते हैं, पता करते हैं कि कहाँ काम मिल रहा है, क्या कर रहे हैं। इस तरह के लोग जो काम वो छोड़ के दूसरा कुछ ढूंढ रहे हैं,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि चलो मैं ये काम छोड़ देता हूँ, कुछ और करता हूँ, लेट मी डू समथिंग एल्स, आई एम फेड अप ऑफ दिस, बिकॉज 1 महीना देख लिया, 2 महीने देख लिया, 6 महीने देख लिया, साल भी देख लिया, so now it is a high time that I should do something else. But there are people also who are across the age of 40s and 45s who at this point of time cannot jump into something else. Again, having said that they are jumping into something कि हर जगह आपको बहुत आसानी से एक एज पॉसिबल नहीं होता है कि आप काम कर लें उसको और वो काम में कामयाब भी हो जाए और कमाई भी करे, ऐसा भी पॉसिबल है। ये वर्किंग कंडीशन, वर्किंग सिनेरियो है। और सेकेंड डायमेंशन मेंटल हेल्थ के बारे में मैं जब बात करना चाहूंगी, तो वो मेंटल हेल्थ, हम जब फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाते हैं, हम हैं या हमारे पड़ोसी हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, हम सभी एक ही ऑन द सेम पाथ, लाइक आपको हो सकता है 2 रुपए एक्स्ट्रा है, सामने वाले को 2 रुपए कम है, एंड आई एम जस्ट कोटिंग फॉर द सेक ऑफ इट, लेकिन हम सभी फाइनेंशियली बहुत कमजोर हैं। फाइनेंसेस इंसान को थोड़ा सा स्टेबलाइज करता है और इमीडिएट नीड्स और नेसेसिटीज को फुलफिल करता है, तो ये बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ 2 तरीके के हैं। व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, तो आप बहुत ज्यादा डिस्प्लेस्ड फील करते हो, आप सोच नहीं पाते हो, आप उसको कंसीव नहीं कर पाते हो, क्योंकि एवरी डे पैसों से ही चलता है। The moment you wanted to work, you wanted to hire somebody, you wanted to buy something, you want to go out and do something, everything is money. Money is required. That is a medium to do all kind of work. तो वो जो है, वो आप जब फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होते हैं, तो इमीडिएटली वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना होने की वजह से जो एक माइंड में एक ब्लॉकेज हो जाता है, एक ब्लैंकनेस हो जाता है, और उससे माइंड कोई भी कॉन्सेप्ट को, कोई भी चीज को, कोई भी आइडिया को वो कंसीव नहीं कर पाती। ऐसे में मुझे ये लगता है कि कम्युनिटी लेवल पे एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, चाहे हम 2 वक्त की रोटी कम खा ले, एक ही वक्त खा ले। आई थिंक दैट गिव्स अ मॉरल बूस्ट, वन, बिकॉज मैं ये कहना नहीं चाहती हूँ ऑनलाइन पे, बट ये फैक्ट है स्नेहशीष जी, हमारे देश में बहुत डाइवर्स कल्चर है, बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, जहां जाते हैं वहां पे हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा है, बट समवेयर वी लैक यूनिटी। ये सच है। वो शायद थोड़ा सा हम यूनिटी को लेकर आते हैं अगर किसी भी जगह पे, आई थिंक ये ओवरकम फाइनेंशियली कुछ हद तक हम कर सकते हैं। अभी जैसे आपने मुझे बताया, आई एम सरप्राइज्ड कि कुछ प्राइवेट चैनल इन द रीसेंट पास्ट में आई हैं। अभी तक तो बहुत जगहों पे कि चैनल्स हैं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आजकल बहुत फेमस हो चुके हैं। ओटीटी में बहुत सारे लोग जो अपना बेधड़क मूवीज रिलीज कर रहे हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं अपनी लिमिट्स को पुश करने की जरूरत होती है, और गवर्नमेंट को भी ऐसे प्ली करने की जरूरत होती है जो इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टर्स को ढूंढे, ताकि ये इंडस्ट्री फ्लोरिश भी हो, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी हो, जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो इमीडिएट फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो कम हो सकता है। ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, और इसको करने में समय तो लगता है, बट आई थिंक वी कैन डू इट। समथिंग इनिशिएट करने के लिए हर तरीके के लोगों की जरूरत होती है। नहीं, आई एम जस्ट इंटरप्टिंग यू, लाइक क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। इनिशिएशन थोड़ा बहुत है, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा, जिस तरह मैंने प्राइवेट चैनल्स की बात किया, उन लोगों का ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी है कुछ चैनल्स पे, तो दे वर्किंग ऑन दैट। एंड अभी एक जिनके लिए मैं कर रहा हूँ फिल्म, ये पहला उड़ीसा का इंडिपेंडेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है, आओ नेक्स्ट। It's I saw that. Yes, our next. And they're focusing on original contents. They're trying to, because they all are from different field. They just wanted to bring back that glory of Odia cinema again. Glory of, very nice. In terms of the web series, and then they procured Kokali. You come for the screening in Delhi, that film of mine.
they I have see. they have procured that film, then they re-releasing that film again. So they are now here to take care of it. But उसमें भी उन्हीं के माध्यम से भी कुछ लोगों को अभी कुछ, जैसे मैंने प्रोजेक्ट किया, मेरे पूरा टोटल क्रू में 70-80 लोग काम किए, कुछ लोगों, बट वो एनफ नहीं होता है, क्योंकि इतना रिम्यूनरेशन होता नहीं है उड़ीसा में, क्योंकि वो पूरा Right. अगर कमा लिए तो 3-4 महीना तक उनको फीड करेगा. इट्स वेरी डिफिकल्ट. I really wish ऐसे कुछ हो. हाँ, ऐसा कुछ. बट मुंबई वगैरह में क्या होता है कि अब एक प्रोजेक्ट कर लिया तो यू आर फीलिंग सिक्योर कि नहीं, चलो ठीक है, Okay. 2 महीने के बाद काम मिलेगा तो ठीक है. दैट्स द रीजन यहाँ पे लोग कुछ अल्टरनेट कोशिश करते हैं. लाइक विद्या, कोई चाय बेचता है, कोई दूसरा काम करता है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट में चला जाता है, तो काम करते हैं. जब भी फिर फिल्म का कॉल मिलता है, जैसे मेरा प्रोडक्शन मैनेजर है, तो उसका 2 ट्रैक थे, यानी एक रेस्टोरेंट है, तो वो उसको चलाता है, बट बिकॉज ऑफ फिल्म पैशनेट है. जब फिल्म होता है, भैया अच्छा ठीक है मैं आ जाता हूँ, तो वो करके जाता है. तो ऐसा ही है. सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट किया, क्योंकि मैं सोचा मैं भूल जाऊंगा इस चीज को मेंशन करने के लिए. तो नहीं, एब्सोल्युटली फाइन. क्योंकि ये बहुत अच्छा लगा कि अभी बहुत कुछ एंकरेजमेंट हो रही है इस तरह की ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए. आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट स्नेसिस जी ये होता है कि आप उनको सस्टेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं तो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म दे दूंगी आपको, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसी में, कहीं ना कहीं वर्किंग एरेना में, to sustain all the technicians, all the filmmakers, in the Odia film industry is important. जब तक आप sustainability नहीं लेकर आ पाते हैं, तो फिर आना जाना फिर वो लगा रहेगा. राइट, करेक्ट. And then फिर उसके बाद इंसान थोड़ा सा अपना मेंटल हेल्थ पे इम्प्रूव होता है, खुश होता है, फिर एकदम वो गिर जाता है, फिर एकदम ऊपर आता है, फिर गिर जाता है. तो उसको एक टाइम पे जाके उसकी ग्राफ जब ऐसी हो जाती है, ये तो एक टाइम पे जाके वो थोड़ा सा मायूस भी हो जाता है कि अब तो मुझे करना ही कुछ नहीं है, और फिर वो कुछ और ही काम करना शुरू करेगा. ये भी हो सकता है. और इस तरह की चीज में कमिंग बैक टू मेंटल हेल्थ, ड्यूरिंग द कोविड एंड आफ्टर दिस, दिस द फर्स्ट वेव, ड्यूरिंग कोविड के टाइम बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत इफेक्ट हुआ. 3 months फिर लोगों ने थोड़ा सा टाइम पास कर लिया किसी न किसी तरीके से. As August, September and October started, there was a lot of hope to go back to the normalcy. But let us, come to an understanding that there is no going back to the normalcy. True. There is a different kind of a normalcy which is going to exist from now on. तो ये हमको समझना जरूरी है. ये अभी ये भी नहीं है कि जून खत्म हो गया तो ठीक हो गया. अभी कोई मुझे बता रहा था कि ये जून में दिस सोलर एक्लिप्स आफ्टर दैट ठीक हो जाएगा. ठीक हो जाएगा इज जस्ट एन ओपिनियन, परसेप्शन. लेकिन क्या होगा दैट इज अनप्रेडिक्टेबल. सो हमको ये हाथ में ये दिस कंसिडर करके जाना होगा. बिकॉज आप अगर ऐसे सोचेंगे तो आप उस सोच के हिसाब से आप अपनी प्लान बना सकते हैं. बट इफ यू थिंक वी विल गो बैक टू नॉर्मलसी, देयर इज नो गोइंग बैक. देयर इज नो गोइंग बैक. देयर इज ओनली गोइंग फॉरवर्ड, एंड दैट फॉरवर्ड इज सम अननोन टेरिटरी, सम अननोन टेरेन पे हम जाने वाले हैं. और वो किस तरह होगा, कैसे होगा, पता नहीं है. उसके लिए मेजर्स वैसे ही होगा आज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वैसे ही हमको जीवन जीना होगा जो आज हम जी रहे हैं. वही बेहतर होगा फॉर फ्यूचर, फॉर फ्यू मोर इयर्स. वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो हमने हैबिट बनाना है इस चीज को. नंबर 1, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारे लोग स्नेसिस जी ये कहते हैं कि जैसे आपने अभी मुझे बताया था कि योगा कर लीजिए, कुछ और प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ मंडला आर्ट कर लीजिए. ये तो मुझे भी बताया गया है ऐसे. व्हेन आई लॉस्ट माय फादर तो मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी, तो मुझे बताया. बट यूजुअली क्या होता है, इट इज नॉट सेड सो. सजेशन तो हर कोई दे देता है, वो अलग चीज है. बट एक्चुअली व्हेन कमिंग टू इट, कैसे करना है दैट इज इम्पोर्टेंट. पता तो आपको भी है कि योगा करना है, वॉक करना है, एंगेज करना है, एंगेज में रखना है अपने आप को, नई स्टोरीज लिखना है, लोगों से बात करना है, फोन पे एंगेज करना है. एवरीबडी नोज अबाउट दिस, देयर इज नो डाउट अबाउट.
but how to get there is the question. How to get there doing yoga, how to get there doing a walk, how to get there writing a story, how to keep that, and where is this all coming from? That is all coming from mind. अगर माइंड आपको सलाह मशवरा नहीं दे रही है, अगर माइंड आपका सजेशंस नहीं दे रही, आप कुछ काम नहीं कर सकते. इट इज माइंड which is giving you a predominant signals. Okay, let's do. Otherwise, you can't do it. You have to keep up yourself. You have to drag yourself. चलो उठते हैं करके आपको उठना पड़ता है. सुबह भी 1 घंटे तक अपने आप को समझाते रहते हो तो उठना पड़ता है. Otherwise, आप 10 बजे तक सोए रहिए. Your mind is happy. It doesn't need anybody's suggestion. Absolutely. Yeah. But everything is in the mind. At the same time, मैं उन सभी लोगों को जो परेशान हैं इस वक्त, जो अपने काम नहीं कर पा रहे हैं किसी न किसी कारण, जो अभी करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, जो 1 साल से बहुत ही उथल-पुथल हो गया है. There's too much of stagnation, uncertainty, loss of people, loss of family members, and they've seen death so close. Yes. They've seen lot of grief. And this COVID deaths are really horrible. और वो सब जो देख चुके हैं, एंड देन देयर इज अ फाइनेंशियल डाउनफॉल, दूसरी तरफ से ये भी देख चुके हैं. Business are shutting down, industries are shutting down, their work is shutting down, they have no means, they don't know where to go. Even if it is shutting down, there is no any other avenue for them to begin something new. This is very, very, very seriously horrible situation to even mention. I am not going to touch about very sensitive issues because वो दुख वो जानते हैं. But मैं कहूँगी कि कहीं तो शुरुआत करना है. वो शुरुआत शायद आपके दिमाग में ऑलरेडी मालूम है कि कहाँ शुरुआत करना है. क्योंकि अगर मैं आपको सलाह देती हूँ, 10 लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं 10 लोगों को सलाह दूंगी कि योगा कर लीजिए. Not everybody's mind can perceive yoga as a tool for coping. If I ask you to meditate, not everybody's mind has that skill, to sit and meditate and have a coping skill. ये possible नहीं है. Everybody has their own set of coping skills. हो सकता है किसी को गार्डनिंग करके थोड़ा सा अपना माइंड काम डाउन हो सकता है किसी को अपने पेट के साथ थोड़ा खेलने के बाद काम डाउन हो सकता है किसी को कोई मूवी देखने से अपने आप को कहीं एंगेज करने से हो सकता है किसी को योगा, हो सकता है किसी को मेडिटेशन. What I really want to convey is, before setting out doing, because आपने पढ़ लिया कहीं कि आपको योगा करना है, आपको मेडिटेशन करना है, उसी से आपका कोपिंग स्किल्स बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. You first sit calmly, understand what you really want to do. You want to read a book? Read. You want to do yoga? Do. Not necessarily that you have to do a yoga for half an hour, 1 hour. You just do it only one asana. एक ही आसन कर. I don't mind doing even shavasana. Don't mind. But do only one asana for 10 minutes. If you're meditating, do a meditation only for 5 minutes. If you can't, close your eyes and sit quiet. You can't do that also, just put up music and listen to it. Sleep, lie down and listen to it. Even if you can't do it, just sit silently outside your home. इतने सारी चीजें हैं, to tranquil your mind. The point is, you need to bring the mind back from all the conflict, all the chaos that is happening for the last 1.5 years. But अपर्णा जी, sorry, interrupt कर रहा हूँ. But ये जो माइंडसेट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो मेरा दिमाग में यार हर किसी के पास का वो मेंटल स्ट्रेंथ होता है जो अपने आप को कंट्रोल में ला सकता है. बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन योर एनवायरनमेंट, डिपेंड्स ऑन योर एजुकेशन, डिपेंड्स ऑन योर अपब्रिंगिंग. आप किस तरह से अपने माइंड को लेके आप इतने साल तक आए हैं एंड किस तरह से किया. क्योंकि यहाँ पे तो लोगों के पास दूसरे दिन के खाने के लिए भी पैसा नहीं होता, कुछ लोगों के पास. अब हमारे साथ ऐसा हो गया कि लाइक जैसे आपने बताया कि आप मूवी देख लो, बुक्स पढ़ लो, वो कर लो, वो तरीका हम अपनाते हैं इस तरीके से कि चलो
एक दिन चला गया, कल का देखते हैं फिर। या फिर अगर घर से कुछ काम है, मतलब बहुत बेसिक्स काम से लेके जाते हैं, कुछ सब्जियां लाना है और ग्रोसरीज, यू वांट टू ब्रिंग ग्रोसरीज एंड एवरीथिंग, तो मुझे वो चलो ठीक है आज कुछ काम है, तो उसको मैं उस तरह से लेता हूँ। तो मेरा मेरा सवाल ये है कि बेसिकली माय क्वेश्चन इज लाइक हर किसी का माइंडसेट, एवरी ईच एंड अदर पर्सन माइंडसेट इज सिमिलर टू थिंक सच थिंग्स, जैसे आपने बताया कि जो आपको आता है आप करो, तो वो उस माइंडसेट के लेवल पे आके, मतलब अपने आप, क्योंकि वो अपने आप से बात करना होता है, अपने आप को समझा के, टू कन्विंस योरसेल्फ, चलो ठीक है वो ये तो हो रहा है, होता रहेगा, मैं अभी ये कर लेता हूँ। इज इट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी वन, और इट्स पॉसिबल दोज आर लिटिल स्ट्रेंथ इन दैट मेंटल कैपेसिटी? It is not possible. That's the right question that you asked. It is not possible for everyone because उस mind को उस तरह की एक command देने के लिए you should have that kind of a caliber first. Absolutely. You know, we're talking about different categories of people. You know, the different sections of people. A person probably who is a weaver, you know, उसके दिमाग में ये चीजें नहीं आती होगी, पर कहीं बार कि हमसे भी वो बहुत सक्षम भी होते हैं। लेकिन ये बात बहुत सही है कि हर कोई उस लेवल तक उस चीज को कंसीव नहीं कर पाता। बट मैं उसी माध्यम से कह रही हूँ कि अगर जो लोग ये नहीं कर पाते हैं, सपोज लेट अस से फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट कोटिंग इट फॉर अ वीवर, तो वीवर के पास बहुत कुछ माध्यम नहीं रहता है। वीवर तो बहुत साधारण सा सोच रखता है कि उसने वीव किया, सामान बेचा, अपना पैसा लिया, अपना जो है घर चलाया। आज वो बंद है, बहुत टाइम से बंद है, तो वो इंसान करे तो क्या करे? वो आप बैठ के ये स्ट्रेटेजी तो नहीं बनाएगा कि ओके नाउ आई एम नॉट वेल मेंटली, आई एम अपसेट, नाउ व्हाट शुड आई डू? शुड आई गो फॉर अ म्यूजिक? शुड आई लिसन टू अ म्यूजिक? और शुड आई गो एंड डू अ जॉगिंग? और ये नहीं सोच पाता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और इसके तो उसको ऐसा साथ लगता है उसके साथ सॉरी, उसके साथ अपर्णा जी और दो चीजें, एक होता है सेकेंड वेव में एक भय पैदा हो गया क्योंकि आपके क्लोज रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स आर डाइंग, एंड एक भय भी है मुझे भी कल हो सकता है। इसके साथ अब दोनों चीज, जब लाइवलीहुड का जो सवाल इसके साथ मिल जाता है, तो हाउ द मेंटल इज गोइंग टू कोप अप विद इट? इट्स वेरी डिफिकल्ट सही चीज जी। एक्चुअली जो इस वक्त सेकेंड वेव का सिचुएशन हैज बहुत ही ग्रिप कर दिया है लोगों को, इतना भयभीत कर दिया है इस वक्त लोगों को कि भाग रहे हैं, सब अपने आप से भाग रहे हैं। लोग रहे हैं, कोई एक दूसरे के साथ देने के लिए तैयार भी नहीं है कहीं जाने के लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि दैट वी आर लीडिंग इनटू अ अंधकार, वी लीडिंग इनटू अ डार्कनेस, हमारे आगे कुछ नहीं है। Lot of people are losing hope actually, or maybe I could quote, if I can, they lost hopes already that they can sustain and survive. बहुत मुश्किल है ऐसे चीजों में, ये मैं बिल्कुल भी कतई मना नहीं करूंगी। ये बहुत डिफिकल्ट दौर है, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टाइम्स है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर ऑन द वेरी मीडियोकर लेवल पे हैं। उनको समझ में आना या कंसीव करने से पहले भी आपका दिमाग क्लियर होना जरूरी है। एवरी डे देयर इज अ डेथ इन द फैमिली supposedly, and you don't have any other means of work or finances, and there is so much going around in the world, going around in the city and your place, and you feel so hopeless and helpless. There is no doubt about it, and this is time where one needs to stand for each other. हम वो भी नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ देना चाहते हैं तब भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा एक मुश्किल दौर है। इस दौर से निकलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक वेपन है, वो थोड़ा चीजें हमारी कंट्रोल में नहीं है। जो चीज कंट्रोल अंदर रखना, प्लस अपना खाना पीना नियम रखना, अपना जो इम्यूनिटी बढ़ाना, इज ऑल इन कंट्रोल। दैट
is everything in your control. But somebody, despite having a medical help, passing away, वो जा रहे हैं, they're dying, and the close family, they're all dying. Sometimes, we have no alternative just to feel sad, bad for the situation. बहुत बुरा लगता है, बहुत ग्रीफ होता है, बहुत दिमाग खराब हो जाता है, एंड बहुत कुछ होता है. बट इसमें टाइम जरूर लगता है to come to normalcy. With if in a family, if 3 or 4 deaths are happening, it is very difficult to sustain that mental stability रहना बहुत मुश्किल है. ऐसे में एक ही चीज है जो अपने कंट्रोल में नहीं है, उसको बार बार रिपीट कर लें कि जो चीज कंट्रोल में नहीं है, एटलीस्ट यू विल, I'm not saying you will come out of the grief. I will not say there will be some immediate help is available. I'm only saying this thought can put you in a better place to manage. Hopeless situation आपको सोचने नहीं देती, ग्रीफ आपको सोचने नहीं देती है, या आप किसी भी तरीके की मायूसी इस वक्त जो चल रहा है वो आप सोचेंगे, आप सोच नहीं देते. बट इफ यू थिंक all these, put list it out and think that all these are like out of control. I have no control over all this. What I have control over this is this, and with this only I have to move forward. This is something that is a diet that you are giving to a mind जो इस जगह से थोड़ा सा इस जगह पे पहुंच सकती है. उस वजह से आपका दिमाग एटलीस्ट काम करने लगेगा. So it will take time to come over whatever has happened in this 1.5 year, but वो हमें एक बेटर पोजीशन पे रखेगी, बेटर जगह पे लेकर आएंगी. आपको बिल्कुल ही जैसे होता है ना, दलदल में आप डूब जाते हो, उससे बचाएगी. दलदल में नहीं, आप एटलीस्ट इफ यू नो स्विमिंग, यू कैन, एक आपके पास लाइफ जैकेट है तो आप डूबेंगे नहीं. तो दिस इज लाइक अ लाइफ जैकेट. If you're thinking about it and think that things are going to work, it's okay. जो चले गए हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप नमन कर लीजिए. मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोल रही हूँ, उसको नमन कर लीजिए. उसे सोचिए कि अभी आगे बढ़ना है और आगे करना है. Not live your life like that. You will stop here. You will have to move forward. आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं. अगर बच्चे नहीं है तो there are so solution and manage slowly you move forward. Slowly you move forward to a better place in managing. Otherwise फिर आप उस दलदल में घुसते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे. जो आपको कई बार दलदल में फंसने के बाद जो रास्ता भी नजर आ रहा होता है या रास्ता भी है वहां पर, वो नजर नहीं आएगा. तो बेटर है, मालूम है कि ये बहुत मामूली बात नहीं है. डिफिकल्टीज आर जितना हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे भी 100 गुना ज्यादा फील्ड में लोग जिनके साथ गुजरा है ये वही जानते हैं. बट having said, this is what we can do now, and this is how we have to get back the skills, move forward and create a new world. Otherwise it will be very difficult. True. क्योंकि अभी एक्चुअली कुछ फ्रेंड्स है मेरे जो एक्चुअली because this topic is today about film industries and all. तो फिल्म इंडस्ट्री पिछले 1.5 साल से, मतलब पहले जब कोविड हुआ था वो आज तक, the film industry has lost also couple of good prominent actor actresses. अभी अच्छे टेक्नीशियंस जिन्होंने मेरा फिल्म किया था, स्पंदन, the camera person, DOP, he passed away. So some technicians are also passed away. तो वो भी एक भय है. At the same time, actually people are asking because you belong to a creative sector, तो आप लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि आप क्रिएटिवली सोचते हो चीज को, कि आप नई चीज लेके आते हो. जैसे मेरा लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने एक गाना किया था, मुंह से ही कड़ेंगे, टू यू नो अबाउट दैट सॉन्ग. लाइक आई थॉट कि अगर एक गाने में हम लोग वो मतलब नेशनहुड लेके आते हैं या अपने बारे में, अपने कल्चर लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, मे बी पीपल विल नॉट. और रिस्पॉन्स भी आया था.
But when I talk to the composer, the singer, जिन्होंने अभिजीत मिश्रा उन्होंने गाया था, तो अभी he is in Mumbai, he is in the same boat basically. तो he said कि मतलब जो मैंने बता रहा था कि लोग बोल रहे हैं कि आप क्रिएटिव लोग हो, आपके, तो मैं भी उनको कई बार बोला है अभिजीत को कि बिकॉज I'm also into creative sector, but you into music, and music जिसके पास है तो उसको कुछ नहीं होता, मतलब he can compose, he can sing. कल नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है, because I'm trying to compose one thing. It's very difficult to compose me right now songs. मैं गाना गाता हूँ तो मुझे मतलब I'm not pitching perfectly to the song. तो ये सारा चीज आता है, मुझे लगता है कि मतलब डिफिकल्ट तो है, बट एज यू सेड, एज यू मेंशन्ड, to bring your mind to one stage to control yourself, because that is the only option left अगर आप Yes. if you want to move ahead. So this is what I think, like we'll have to move, carry forward, because मुझे याद है जब 2009 में मेरा मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हुआ था, तो आई थॉट ड्यूरिंग दैट टाइम आई टोटली लॉस्ट, अभी आगे कुछ होने वाला नहीं है. दैट टाइम माय फादर वाज अलाइव. ही टोल्ड मी, लुक, अभी ये बड़े बड़े वो जो वेव्स आ रहे हैं समुंदर में, जरूरी नहीं कि आप उसको छाती दिखाओ और उसको फेस करो. आप झुक जाओ, वो वेव्स आपके ऊपर चले जाएंगे, बाद में आपको शांत समुंदर मिलेगा, तो जिसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो. तो दिस इज बहुत खूबसूरत बात बताई है, बहुत खूबसूरत बात. There is so many meanings that you can derive from this. एग्जैक्टली. Mother has explained. तो वो चीज को हमको अडेप्ट करना है बेसिकली, मुझे जो करना है. बट अजय आस्क यू, मतलब मैंने जिस तरह से आपको पूछा था, मैं तो कर लूंगा, चलो मैं अपर्णा जी को जानता हूँ, आई कॉल्ड हर अप कि अपर्णा जी ऐसे ऐसे हो रहा है कि, एंड पीपल नो हाउ टू हैंडल देमसेल्व्स. बट आई नो, बिकॉज आई कम अक्रॉस सम पीपल कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देम ऑल्सो, क्योंकि उनका इमीडिएटली एक फूड के साथ कनेक्शन है, क्योंकि उनका कल क्या खाएंगे उसका पता नहीं है. तो वो अगर हाँ उस टाइम में आके दिमाग को कंट्रोल में रखना, ब्रिंगिंग बैक टू दिस थिंग इज वेरी डिफिकल्ट. आई डोंट नो हाउ दे आर मैनेजिंग देमसेल्व्स, बट स्टिल दे आर अलाइव एंड आई वांट देम टू अलाइव. I think life is more than being just alive, Sneh Ji, because we are more important than just a piece of body. क्योंकि हम जब तक अपने आप का जो वजूद है उसको जब तक इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो हम बहुत जल्दी पेरिश हो जाएंगे. ह्यूमन रेस बहुत पहले खत्म हो चुका होता अगर हम मायूस हो जाते. आई थिंक एक ही है जो जज्बा है कि ह्यूमन रेस अभी तक खत्म नहीं हुआ है. और रही बात कि दिस सिचुएशन जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है जहाँ लोगों को खाना भी बहुत कम पहुंच रहा है. आई एम श्योर बहुत सारे कॉर्नर्स होंगे उड़ीसा के, मे नॉट बी इन द सिटीज, इट कुड बी इवन इंटीरियर्स ऑफ द स्टेट. There might be a lot of people suffering. True. But I think if we unite, जैसे मैंने शुरू में बताया था, अगर हम थोड़ा सा यूनाइट होते हैं, एक खाना, एक वक्त का खाना किसी के घर पहुंचाना डिफिकल्ट नहीं है. The like-minded people has to come forward, और one time food, मैं ये कहूंगी कि खाना का मतलब है कि आप पेट भर के जैसे शादियों में खाते हैं वैसे नहीं. Plate full of meal where you can sustain your life for a period of time. जब तक that somebody is taking care of your food, so you can continue working on whatever that you are working. अगर ये एक मकसद बनाया जाए, और कई बार क्या होता है, मेरा ये मानना है, मेरा ये ओपिनियन है, इंसान सबसे पहला अकेला चलता है, फिर धीरे धीरे उससे जुड़ते जाते हैं लोग उस सोच के साथ, काम के साथ, सोच के साथ. वो सोच के साथ जब जुड़ जाते हैं, आई थिंक नो प्रॉब्लम लुक्स बिगर देन दैट. नो प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट एबल टू डू, ऐसी वाली बात नहीं आती है. वी कैन ओवरकम एवरीथिंग. एंड आई थिंक फिलहाल काम नहीं भी है तो एक one meal, one day, a meal, that meal can easily be given to a person so that he is at least free in some corner of his mind.
कि चलो मेरा परिवार को खाना तो मिल रहा है, तो एटलीस्ट लेट मी जस्ट फोकस ऑन समथिंग। तो इतना तो हम शायद कर सकते हैं। और नहीं है ये यहाँ मुश्किल पे है मेरा। उड़ीसा में, यहाँ पे है मतलब एक कुछ फाउंडेशंस है, एक सोआ माई फाउंडेशन है, एक नरूलास है, दैट इज बेसिकली क्लॉथ स्टोर बट दे आर प्रोवाइडिंग फूड। सोआ माई फाउंडेशन प्रोवाइडिंग फूड्स to the COVID patients basically, and this Is also good. sorry, ISKCON is all ISKCON. ISKCON, I have no idea ISKCON is providing or not, but these are, Yeah, ISKCON but in Delhi and in many places they are distributing food. but here the Gurudwara is providing. Who? Gurudwara. Okay. They're, Okay. That but that too they're one. providing good food. It's not like it's very good food packed with proper Yes. silver foil. The few couple of other organizations are providing in different districts and all. But as you have mentioned, in the like distant corner, people are there. They're not reachable. Now, how to reach with Yes. them? That we have to think, and that we have to channelize. Like if some people are there, they can connect with you and you can guide them to reach them. So that can be done. And I have seen some other day, three girls in Dhenkanal districts, with the three I bikes, see. they are providing from their pockets. Like they don't have money. Wonderful. Anything they are providing to street people basically, street beggars and street peoples and all. And one organization are also providing food to the animals, like guy Yes. hoga, bell hoga, dogs and street dogs and everything. Every day they're providing. Yes. People are there working. People are there working, but Right. reaching with each and everyone is difficult. But as you have mentioned, we'll try to reach Yes. the far people as well. स्नेह से जी आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहती हूँ, मेंटल हेल्थ को जीतना इज इट्स नॉट अ वन टाइम एफर्ट, इट्स एन कंटिन्यूअस एफर्ट एंड इट्स अ कंसिस्टेंट एफर्ट। अगर आप डिप्रेस्ड हैं या अगर मायूस है, कुछ भी हो सकता है, यू नो देयर मस्ट बी एनी अदर प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग थ्रू। It could be unexplainable, you know, sometimes you can't put it in words, you know, there is some grief, something sadness which is in your heart. ऐसे में भी anything that you wanted to, anybody who wants to practice, उसको एक दिन में होगा नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जितना आप उससे बाहर निकल के, जैसे मैंने बोला आपको कि दिस यू हैव टू थिंक दिस इज आउट ऑफ माय कंट्रोल। जब तक आप उस चीज से पूरी तरह से डूब के नहीं निकलते हैं कि दिस इज नॉट इन माय कंट्रोल वाली बात को पूरी तरह से दैट यू आर टेकिंग इनसाइड योर बॉडी, that is when slowly the transformation happens, the shift happens. Then you move away from, you know, thinking that I am incapable, I can't do anything, I can't see, there is no hope. वहां से आप हट के जब देखेंगे, you will find lot of people with opportunities. You can create opportunities, you can come out of it. But again, this all will take time. Are you ready and are you willing is the question. Exactly. If you're willing, you can do it. आपको अपने आप से पूछना होगा, जो भी है वो अपने आप से पूछा, am I willing to take this, you know, consider this challenging times, you know, am I willing to, you know, continue this and do it for my own self development, you know, learning हो, इस तरह की चीज हो, these are all for a self development. Right. अगर ये चीज उसमें से आप नहीं निकलते हो तो सेल्फ डेवलपमेंट तो दूर की बात है, आप उस दलदल में और फंसते जाओगे। और उसमें क्या होता है, जब इंसान एक दलदल में फंसता है ना, हर कोई कीचड़ वाला ही नजर आता है। Exactly. You see people as bad that they are not doing, there is always a complaint. आप कंप्लेन ही करते जाओगे, इसने मेरा मदद नहीं किया, उसने नहीं किया, उसने मेरा पिक नहीं किया, कॉल। I've seen lot of people like that. जब आप मायूस हो जाते हैं लाइफ से, लोगों से, या होपलेसनेस बढ़ जाता है, आपको हर कोई इंसान गलत ही नजर। सो कि आप अपने आप को ठीक रखेंगे, अच्छे रखेंगे, तो फिर देखिए कमाल, हर कोई इंसान आपको अच्छा लगेगा, हर कोई इंसान ऐसा लगेगा ये आपको मदद करने वाला है। अगर एक इंसान आपकी एक उंगली भी पकड़ के एक स्टेप भी आगे ले जाए तो दैट्स इनफ। आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब आई वाज लिसनिंग टू यू, बट जो भी आप बता रहे हैं तो बेसिकली ऐसा सिचुएशन ऑटोमेटिकली हो रहा है, इन द सेंस
जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, पहले जैसे सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, तो सरकारी स्कूल में क्या होता था, वो ऑफिसर का लड़का जिस सेक्शन में था, एक पियोन का लड़का भी उसी सेक्शन में था। अभी वही अच्छा, सिनेरियो हो रहा है, बेसिकली वी ऑल आर इन द सेम बोट। ठीक है, अभी सेम। चीज चीज थिंग ये है कि वो उस जोन से निकल के, जो हम लोग का सेल्फिशनेस था, जो सुपरफिशियलिटी था, उससे बाहर के हम लोग को यूनाइट होना है, अगर कुछ मिलके करना है। आप जैसे जो मेंशन अर्लियर, तो वही चीज है, हम राइट। लोग के पास अभी अपॉर्चुनिटी है बेसिकली to जी। bring back those days and work together. So राइट। I think it's there, like it's up to you, like as you have mentioned earlier, मुझे इसको करना या है कि नहीं, whether I'm going to do नहीं। it or not. This is my question, ये and I'll have to answer that. But या again, I said this thing is And happening. I would give one more suggestion to the audience also. जब आप बैठते हैं ना, don't consider all the aspects of life. Pick one. It works. Only one. क्योंकि तलवार तो एक ही हाथ में ली जा सकती है, एक में Exactly. तलवार नहीं रह सकती। आप अगर बैठेंगे कुछ सोचने के लिए, कुछ मेरे को सॉर्ट करना है करके आप बैठेंगे, और उसमें डेफिनेटली आपका काम भी होगा, फाइनेंसेस भी होगा, घर भी होगा, बीवी भी होंगे, हस्बैंड भी होगा, बच्चे भी होंगे, अगर माँ बाप हैं तो माँ बाप भी होंगे, सभी कुछ होंगे। बट आउट ऑफ ऑल दैट एक जगह पे पिक कर लीजिए कि क्या चीज को पहले सेट करना है, या पहले कौन सी चीज को पिक करना है। आप अपने माइंड को सेट करेंगे, उसके बाद आप अपनी फाइनेंसेस को सेट करेंगे, या आपके काम को सेट करेंगे, या बच्चे को सेट करेंगे। इट्स लाइक पिक वन पर्टिकुलर topic, I would say. Each one of us are topics in the family. Pick each topic and work on them. Even if it takes time, end of all the topics, you will be really happy that you did it. You did it and you have succeeded in doing it. And you will be very happy doing by it, and you are going to be the leader of your own life. And you have time now. Because, yeah, what happens if किसी की सजेशन के हिसाब से जाते हैं, कई लोग कामयाब नहीं होते हैं, तो फिर वो कई बार कहते हैं मैं तो उसकी राय लेके मैंने ये कर लिया एंड आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग एंड देयर इज सो मच ऑफ नुकसान हो गया है, ऑल दिस थिंग्स। सो इट्स बेटर यू टेक अ कॉल, you pick up the topic, you work on it. In case you're stuck, seek somebody's support, somebody's advice, and end of the day, do what is right for you. Absolutely. How you think it is suitable for you. And then once you succeed, you will be really leader of your own life. Instead, just blindly following, some YouTube, उसमें कि हाँ सुबह उठते ही आप प्राणायाम कर लो, नहीं हो सकता है प्राणायाम आप नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिफाई व्हाट यू कैन डू, आइडेंटिफाई योर कोर स्ट्रेंथ, स्टार्ट विद दैट, बिगिन विद दैट एंड अ वेरी स्मॉल tidbits. You don't have to do Identify what exactly interests you, basically. Sorry? I said identify your interest. Yes. So Identify your interest. My interest probably I just pick a call and talk, ये भी हो सकता है। My, there are some books, ये भी हो सकता है। Sometimes I just don't do. अभी मैं सच में बताऊं आपको, being very honest with you, Snehasis ji, I think for the last 2 months, I've been just resting, sleeping. I have never in my life slept in the afternoons. But now in a week that I'm 2 to 3 days, I'm sleeping for an hour. Good snap, because that is my coping mechanism probably after my father passed away. There is a grief and I can't sleep at the night, and there is sometimes some sounds coming. The best thing is I sleep off, I snooze off myself completely. I get up refreshed, I drink something, something very hot and nice. It could be a milk, it could be a tea, it could be anything, and then just revive myself. I feel good. yeah, This is what because ऐसा नहीं है कि मैं सोती हूँ, लेकिन this is what I have identified at the moment. I'm not saying that I'll continue sleeping whole life, yeah, but at the moment, this is what giving me some kind of a push. true. Some kind of push that, okay, I'm rejuvenated. My mind needs rest. What I identified is my mind needs rest. There needs to be some sort of closing down all the noises
in the mind. So the sleep for me is like a meditation. Absolutely. That 1 hour is a meditation. So identifying is that what you really wanted to do. But please be careful about your health. It doesn't mean that you start sleeping tomorrow. That people say that Aparna has advocated sleeping or eating. Don't do that. So in case if you feel it, you sleep. But everything should be done moderate. Absolutely. बहुत ज्यादा करके उसके बाद परेशानी नहीं लाने का है, बस वही चीज है. If you want to check So any no, that's what I'm saying. yeah, Like, yeah. if you want to check if someone asks some questions, we haven't checked the comments. If you want to check those comments, Okay. you just check the comments. Like, for that, you have to rotate your phone, I guess. No, there are no questions actually Okay. so far. But if anybody wants to ask questions about about the health or something, mental health or anything else, we can answer them. True. So this is they're only joining. I this whole conversation should help people and should help this industry, especially Odia industry, because I'm sure there must be a lot of trouble people are facing. And I really appreciate those people who are in the dual works, like a person spot boy doing that is, I think that's a skill. One needs to know how to do that, because these days you can't stick to one particular a career option. If you know something, it's good. Yeah, because they don't have ample work. They don't have ample work, and they don't get that much of money so that they can survive. So every other person wanted to do some other thing along with the industry's work. So that is there. But I want to be industry to go for more work. Ajay, the OTT platforms are coming. Then I hope the theaters will open, and again the films will be made, and all. The volume of work needs to be increased for the people, so that people That's involved. right. So with the hope is the one thing we can rely on that right now. Yeah. I think even if we are hoping also, I think we need to, these days through social media also, we can create a space for more possibilities. Okay. One is hope, and the possibilities that you can create, that one can create, is invite people for investing more in art and culture, because I think Odisha is underrated when it comes to what is it called, specifically a travel. Yes. Yes. I've seen Madhya Pradesh at one point of time, they have created a lot of videos for inviting people to tourism. Tourism, basically. Now, currently, the government of Odisha trying to promote tourism. They are like That would be wonderful. Yeah. Odisha, you have wonderful places and historical monuments. Absolutely. And so I think once if this is promoted, I think the industry also, there is a possibility of establishing with more stronger roots. Now, recently, This is also the current government is promoting a lot Odisha tourism right now. They're making promotional videos and all that. They are improving those tourist locations as well. They're like renovating the structures, and they're taking care of it right now. And they have realized like this is one sector where they can basically explore things. So they're doing. It's always government is not bad, and they're doing actually. no. Any try is a good try. Everybody are trying. I think we need to lead one way. If we are going 10 different ways, then we will end up nowhere. So Absolutely. Hopefully this, I think even in the industry, people probably will watch through you. I just wanted to convey the message. Kindly hold on for some more time. I think there is a hope which is blinking somewhere. There is a silver line always visible. So even इतना time रुके हुए थे, थोड़े और वक्त अगर रुके
ठहरे रहेंगे, मेरे ख्याल से वो वक्त जरूर आएगा जहां आपको सराहा नहीं जाएगा. Thank I'm sure it's going to be, some more light in our lives. Absolutely. Like, thank you so much for all your, valuable time and inputs, and I've learned a lot today. I was, yeah, absolutely. Honestly, I've learned so many things. So I can, at least I can manage myself. I can, convey these things to my friends, those who are watching, those who are not watching. So I can share these videos to them. I think this is going to be like one point I have realized, like what you mentioned is very attracted to me. You should go for a work one at a time, basically, as you have mentioned. So for, that is basically the steps you are going to go ahead with that. So एक के बाद Yes. एक अगर steps हम चढ़े तो धीरे धीरे तो ऊपर जी. पहुंच जाएंगे. तो बिल्कुल. this is a wonderful eye opening for everyone, I believe, and it's for me at least. Thank you. Thank you so much for this wonderful. I'm sure that helping people also. आपके माध्यम से जितने भी लोग देखेंगे स्नेहशीष जी कहीं भी, अगर आपकी बात मेरी बात को वो लोग थोड़ा सा जोड़ के समझ ले, Absolutely. भी जिस तरीके से भी वो गुजर रहे हैं, जितनी तकलीफ से भी वो गुजर, थोड़ा उनको हिम्मत आ जाए. अगर किसी कारणवश कहीं भी स्टक हैं, I think people like us can be helpful in creating certain things. Absolutely, yes. बूंद बूंद से सागर बनता है, ये कहना कोई कहने के लिए नहीं है, और ये सच्चाई है. Absolutely. कि हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, कुछ पुश करेंगे, कुछ और क्रिएट करेंगे, पॉसिबिलिटीज बनेगा, फिर आगे बढ़ेगा. यही हो सकता है. Absolutely. और इसी सोच के साथ करना है. या इस सोच के साथ हम लोग को ये करना चाहिए, और डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा. मतलब इतने सालों से बहुत सारी चीज होते आ रहा है. अप एंड डाउन तो होता है लाइफ में. दिस इज अनदर थिंग, वी हैव टू ओवरकम इट. तो बहुत सारी चीज लोग कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए. हमने भी थोड़ा बहुत किया है, तो मुझे लगता है विल ओवरकम फ्रॉम दिस सिचुएशन वेरी सून. Right, yeah. Thank you so much. Thank you. I should thank you for joining this whole discussion. My मुझे बहुत pleasure. कुछ पता है. My pleasure, actually. Yeah, pleasure is all mine actually. So I'm going to end this whole conversation with one thing. Sure. That Snehji, you will be rocking in the next 2 years, and I'm sure I'm going to visit Odisha, and I'm going to see Odisha through your lenses, from Thank you so your much. point of view, your perception. That is my very long-standing wish, because I have not touched that land so far, but I have that wish to see that from different perspective, and I'm sure in the coming years this wish is going to fulfill. I will try my best. And Definitely, I will try my wishing best. you all the best for Thank your you so future much. projects. I'm eager to listen to your next project story, and I'm Sure. sure in the next few months or maybe in a month you will be completing, and you are going to set a big example for all others. Thank you so much for the belief, and I'll try to do that. And Certainly. you are also doing good and doing wonderful. Like, no need to explain that. And thank you so much again for. Yes, thank you. Thank you. It's my pleasure. It's all mine. Thank you. Thank you. Take care. Take care.